So what I was telling is that now, once you have got this formula, now once you have got this relation, MVR is equal to NH by 2 pi. So this was the third point we discussed. And now fourth point is like what happens is that now while revolving, correct? So when this electron is now revolving around this in a nucleus, correct, positively charged, तो क्या हो रहा है? There is some electrostatic force between the electron and the nucleus, जो कि क्या provide करता है? This electrostatic force, it provides some centripetal force, right? So while revolving, what happens is that the electrostatic force between electron and nucleus, electrostatic force between electron and nucleus provides what? Provides centripetal force. Provides a centripetal force. So if this is a positive center, electron is revolving, and this provides what? This provides a centripetal force, correct? So our electrostatic force is represented by like this: 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, right? Correct. And centripetal force is mv square by R, right? So electrostatic force, all of you know, between the positive and negative center, it's represented by this formula, right? Q1 Q2 by R square. And same formula you will find for your, आपने फिजिक्स में पढ़ा है ग्रेविटेशन के बारे में ना, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, करेक्ट ना? जीवन, करेक्ट? क्या है फॉर्मूला फिजिक्स वाला, है ना? G(m1 m2 by R square), करेक्ट? वैसा ही कुछ फॉर्मूला है, whenever there is attraction, या ऐसे टाइप का फॉर्मूला. तो here also you are using the same formula, 1 by 4 pi epsilon naught is Q1 Q2 by R square. This Fe, and then Fc is what? mv square by R, ना? ये सेंट्रीपिटल फोर्स. mv square by R कहाँ से आया? क्योंकि R क्या है? आपका रेडियस है. जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से घूम रहा है, करेक्ट ना? ये क्या है? आपका रेडियस, राइट? एंड दिस इज योर velocity, correct? That's how you get your mv square by R, right? So these two forces are now equal, ना? पहले भी हमने देखा इसका, दोनों forces equal है. Fc is equal to Fe, है ना? रुदरफोर्ड वाले में भी देखा था हमने. So now once you have understood that both of them are equal, Fe is equal to Fc, ये दोनों equal है, ताकि तो that's why electron is able to stay there. Otherwise it would have collided with the nucleus, but it's not happening that like that. So what we'll do now, we'll equate it. ठीक है, इसको इक्वेट कर दो. कैसे करेंगे इक्वेट? लिख दो इसको. Fc is equal to Fc, Fe is equal to Fc, क्या आता है? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square is equal to what? Is equal to Fc कितना आया है? mv square by R, correct? We've got mv square by R. So 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square is equal to mv square by R. तो ये वाला इक्वेशन जो मिला था, ये इक्वेशन नंबर 1 है. This equation which we have got now, very important equation, this equation number 2 which we have got, correct? तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? How many nucleus are there in the proton? So है ना, इसको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड किया तो अच्छा रहेगा, बराबर. कितने प्रोटॉन्स है? Protons in nucleus is equal to atomic number
एटॉमिक नंबर इज नन अदर देन z, करेक्ट। तो कल भी हमने देखा था एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, राइट। And because your nucleus has how many electrons or how many protons, because your nucleus has a z number of protons, you know, so I can say that, and each proton has charge how much, equivalent to that of the electron, right. So I can say here that the nuclear charge is equal to Ze, you know, nuclear charge is equal to what, Z into E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, सेम ही है, बस क्या फर्क है उसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही है, फर्क क्या रहता है उसमें, फर्क बस साइन का रहता है ना, ओनली योर साइन चेंजेस, करेक्ट, ओनली व्हाट चेंजेस, योर साइन चेंजेस, करेक्ट, बस क्या चेंज होता है आपका, साइन चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता उसमें, है ना। सो नाउ looking at this, what we come to know is that, okay, नहीं ये आपके चार्जेस है प्रोटॉन के, करेक्ट, और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कंसीडर करो क्या है, Q1, और अंदर के पूरे चार्जेस को क्या करेंगे, Q2, तो Q1 का क्या कितना चार्ज है, Q1 का बस एक ही है, E1, तो Q2 कितना है, Z टाइम्स इनटू E, राइट, Q2 कितना है, Z, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने टाइम्स इनटू द इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। So Q2 is how much, Z times Q1 is equal to how much, E, correct. Okay, getting my point, you know. So that's how we got nuclear charge also Ze. तो Q1 Q2 में जब डालेंगे तो क्या डालना है, E और Ze को डालना है, समझ में आएगी मेरी बात। To put in Q1 and Q2, you will always put what, E into Ze. Getting my point. And now fifth point we'll discuss is that called as, so while what is happening when it is revolving, जो ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन घूम रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस में, ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो एन इलेक्ट्रॉन विल नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी, करेक्ट, है ना, ऐसा भी उसने बताया, किसके ये सब पोस्टुलेट्स, किसके, सब बोर्स के पोस्टुलेट, क्या बताया उसने, while revolving in a particular orbit, correct, an electron neither gains nor loses energy, correct, it neither gains nor it loses energy, getting a point, ना कि गेन करेगा ना कि लूज करेगा, ठीक है, ओके, दैट मीन्स व्हाट इज सेड दैट, दैट्स व्हाट जो पहले हमने देखा कि, राइट, that's what we had discussed, neither gains nor loses energy, correct. So energy of an orbit or shell is what it is fixed, ना वही हमने देखा था, correct, energy of an orbit or shell is fixed, that's what was his postulate ना, बोर्स का भी postulate था, correct, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका ये भी थियरी चला गया था ना, रुदरफोर्ड का थियरी चला गया था, ठीक है, ठीक है। तो शेल्स कौन से बताया उसने, शेल्स वर stationary energy levels, है ना, so all these shells are what, they are stationary energy levels, correct, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, है ना,
and they are nothing but KLMN. करेक्ट। इसका मतलब क्या, हर जो शेल है, मान लो इसमें बहुत सारे शेल आ गए, तो सबका क्या रहेगा, सबका शेल का एनर्जी जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। करेक्ट। जैसे एवरी शेल हैज सेम एनर्जी, उसके बीच में कोई नहीं, यहाँ पर बीच वाले का कुछ एनर्जी नहीं है। करेक्ट। जस्ट लाइक वी से दैट क्लास में जिसका 90% आता है वो क्या करता है ना, पहले 2 सीट क्लासरूम में, पहले 2 सीट है उसमें कौन बैठता है, 90% वाले बच्चे, है ना। फिर तीसरे और चौथे सीट पे कौन बैठता है, 80% वाले बच्चे, है ना। पांचवें और छठे इस पे कौन बैठता है, 70% वाले बच्चे। सातवें और आठवें इस पे कौन बैठता है, 60% वाले बच्चे, है ना। करेक्ट। तो लाइक दैट इसका भी है, जैसा एनर्जी लेवल है वैसे वैसे बच्चे बैठेंगे। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, राइट इट डाउन फास्ट। डन राइटिंग। स्वरूप, स्वरूप राज, स्वरूप दामोदर, समझ में आएगा तुमको? स्वरूप, बाकी लोगों को समझा क्या? हाँ सर। कुछ डाउट होगा तो पूछते जाओ, ऐसे डाउट को मन में मत रखते जाओ। मतलब बेसिकली डाउट, क्लियरिफाई डाउट्स। ओके, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो।
Okay, so we should move ahead now. Okay, should we move ahead or no? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. आप लोग तो वैसे भी कुछ बोलने नहीं वाले है कि नहीं? क्यों? बोलने तो कुछ वाले नहीं वैसे आप, बराबर ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी. Still I'm telling you, if you have any doubt, you clarify it. बाद में रोना मत, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया. अभी पूछ रहा हूँ मैं 10 बार, अभी बोलना चाहिए तुमको. बाद में बोल सकते हैं लेकिन why not now only? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी. Now we have seen many permutation combinations, correct now? Right? Just like these many formulas are there. Equation 1 is there, equation 2 is there. Correct ना? अभी इक्वेशन 2 और 1 से हमको बहुत सारे अभी चीजें मिलने हैं. हमको रेडियस मिलेगा, एटम का रेडियस कितना है वो मिलेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है वो मिलेगा, बराबर. एंड देन सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट नाउ फ्रॉम जस्ट बाय दिस टू इक्वेशंस. ओके, सो लेट्स find it out what all things we are getting, correct? So you can write down now calculations. Okay, क्या क्या चीजें मिलने वाली है हमको? We are going to get radius, we are going to get velocity, we are going to get kinetic energy, we are going to get potential energy, we are going to get TE. T का मतलब क्या है बच्चों? टोटल एनर्जी. ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है अभी हमको, है ना? Let's have a look now. Okay, let's take equation number 1. What was equation number 1? Equation number 1 क्या था बच्चों, किसी को याद है? What was equation number 1? MVR is equal to NH by 2 pi. This was equation number 1. And equation number 2 was what? MV square by R is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This was equation number 2. Now what you do? Divide both of them. करेक्ट. क्या करो, दोनों को ना डिवाइड कर लो. ठीक है. ओके, व्हाट विल यू डू? वन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है, 1 को स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मीन्स व्हाट? इक्वेशन 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मीन्स व्हाट? इक्वेशन 1 का स्क्वायर ले लो. MVR is equal to NH by 2 pi का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? दिस इक्वेशन. MV square by R is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. करेक्ट. Q1 Q2 का वैल्यू तो हमको पता है ना. Q1 Q2 का वैल्यू क्या है हमको पता है, हम लोग डाल देंगे उसको. ठीक है, so once it gets squared up, right, once it's getting squared up, what you get is
what I will get is m squared v square and r squared divided by what? mv square by r is equal to what? I will get more n square h square by 4 pi square divided by 1 by 4 pi epsilon naught. और q1 q2 की जगह क्या डालेंगे अभी? q1 was our e है ना, हमने देखा पिछला, और q2 क्या था अपना? z into e है ना, यहाँ पर देखा ना हमने, कहाँ गया? q1 is e, q2 is z e, वही डाल रहे बस यहाँ पर, करेक्ट, डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब कट करो जो जो कट होता है, जो जो कट होने वाला है उसको कट करो। क्या क्या कट हो रहा है देखो, m स्क्वायर और m कट हो गया, पूरा का पूरा तो नहीं होगा लेकिन जितना पॉसिबल है उतना कट कर दो, करेक्ट ना? ये r और इधर का r कट होगा, राइट, 4 4 कट हो गया, पाई पाई कट हो गया, बराबर ना? तो ये सब कट होने के बाद फाइनल इक्वेशन हमको क्या मिल रहा है? फाइनल इक्वेशन वी आर गेटिंग आफ्टर कटिंग एवरीथिंग इज व्हाट? r स्क्वायर तो है इधर, करेक्ट, बट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज, क्या मिल रहा है बच्चों हमको यहाँ से? तो ये r भी क्या होगा? ये r भी आगे जाके कट हो जाएगा, r ऊपर जाएगा और एक ही r बचेगा अपने पास। सो 1r ना, इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन व्हाट रिमेंस विद अस इज, क्या क्या रहता है हमारे साथ बच्चों, बताओ? r स्क्वायर बाय v बचा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर क्या बचा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई अपॉन z स्क्वायर बाय r, करेक्ट। तो ये r और ये r क्या कट हो जाता है, बचता कितना? एक ही r है, ओनली 1r रिमेन्स विद अस, करेक्ट, यस और नो? कितना r बचता है हमारे पास? एक ही r बचता है। देखो अभी क्या करेंगे, एक r का क्या करेंगे अभी? we'll take this 1r and what we'll get is now r is equal to n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना? साइड में क्या आ रहा है अभी? एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी था ना, हमने खा लिया लगता है एप्सिलॉन नॉट, राइट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, एक पाई तो बचा है, यहाँ पर क्या था? m भी बचा था, m, करेक्ट, पाई क्या क्या आएगा बताओ, बोलो? m z स्क्वायर, करेक्ट, ये आपका आ गया r बच्चों, है ना, राइट, दिस यू गेट व्हाट? योर r, एंड इफ आई वांट टू राइट फॉर r n इज इक्वल टू कितना आएगा फिर यहाँ पर? n का वैल्यू डालने से स्पेशलाइज्ड कुछ आएगा हमारे को, तुम क्या करते हैं अभी यहाँ पर जो कांस्टेंट होते हैं उनको साइड में लिख देते हैं, h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाय कितना आएगा? z एमस्ट्रॉन्ग, करेक्ट, n स्क्वायर बाय z एमस्ट्रॉन्ग, है ना? सो r इज इक्वल h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाय z, करेक्ट, एमस्ट्रॉन्ग एप्सिलॉन नॉट एमस्ट्रॉन्ग, correct, n is what? Number of shell, n is what? z is what? Atomic number, so like that you are getting this equation also with you. Okay, getting one point. So Rn is what? h squared epsilon naught pi m squared into n squared by z, और इसको सब पूरे को सॉल्व कर दो तो क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है Rn is equal to 0.53, इन पूरे का वैल्यू क्या है? 0.53 n square upon z आर्मस्ट्रॉन्ग, करेक्ट, ये हमको वैल्यू आ गया है ना? तो n डिपेंड्स ऑन द शेल, करेक्ट। So we see the given question that find the radius of first, second and third shell of hydrogen atom, इसका कि z का वैल्यू कितना 1 है, तो क्या निकलेंगे हमारे पास? R1 is equal to
0.53 into 1 square by 1. R2 is equal to 0.53 into 2 square upon 1. Zero 0.53 into 3 square upon 1. Correct? All these things will you get. पहले का आंसर कितना 0.53 जो 4 into 0.53 कितना आता है 4 into 0.53 सो कैलकुलेशन कर लेना आप बाद में 0. स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू इसका कितना आता 9 into 0.3 ओके 9 into 0.53 एंगस्ट्रॉम ओके getting my point any doubt till here anyone else आपको एक और क्वेश्चन देता हूं तब तक आप लिख लो I'll write one more question for all of you till that time no which of the following have so the following will have same radius which of the following will have same radius as first shell as first shell of correct as first shell of no correct as hydrogen atom which of the following will have same radius as first shell of hydrogen atoms ना तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ आपको ठीक है इसको करो देखते कितना आता है तुमको भी okay good correct answer Riya has given correct answer very good
ये हो गया क्या सबका? Vandishti Aguli. Done. Got the answer? Yes. Are you there? Or no? Got the answer? आहे का नाही? बोली. बोला काहीतरी. अस्मित चौहान. आंसर आया क्या? अस्मित चौहान. Okay, let's move ahead now. इसका सेम रेडियस रहेगा. Correct answer is what? Is your B. Now, because you find that how it comes. How this B comes is by check now. कैसे आता है B? If I take the B1, if I find the R, and 0.53 into what is my formula? 0.53 into R square. Correct. Into R square by Z. Correct. Sorry. R square नहीं है, N square है. ठीक है. N square by N कितना है इसका बेरिलियम का? 2 स्क्वायर है कि नहीं? बराबर ना? करेक्ट और ना? राइट. और सेल तो 2 है और ये कितना है इसका? 4 है. मीन्स व्हाट? 4/4 इज इक्वल टू 1. बाकियों का वैसे नहीं आएगा. करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज दिस वन. लिथियम का करने गए तो क्या आएगा? ये वाले क्या आएगा? रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू 2 स्क्वायर बाय 3 है ना. दैट मीन्स 0.53 इंटू 4/3 है ना. नहीं आ रहा है. करेक्ट. तो पूछा क्या था उसने? सेम रेडियस फर्स्ट शेल ऑफ एच एटम. फर्स्ट शेल ऑफ एच एटम को कितना आता है? देखो, फर्स्ट शेल ऑफ एच एटम इज दिस मच ओनली 0.53 एंगस्ट्रॉम. ये भी कितना आया? 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगी नहीं? One into 0.53 Armstrong. Correct. So that's how we get.
ठीक है. So one important thing to note is that the whole Bohr's model is valid only for whom? Is valid only for single electron species. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब ऐसे लोगों के लिए जहां पर क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है. जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना. हीलियम में क्या है, करेक्ट. हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. लिथियम 2++2 में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना. बेरिलियम +3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. So ideally this is what helium, this is lithium and this is beryllium है ना. सब में आइडियली कितने होने चाहिए था, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. लेकिन ऐसे ही टर्म्स इन्हीं के लिए वैलिड है बस. करेक्ट ना. ओरिजिनली दे आर लाइक दैट, बट दे आर वैलिड फॉर such kind of species only. Getting my point? ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, आगे जाएंगे फिर बाद में. ठीक है, हो गया लिख के. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू सी द वेलोसिटी पार्ट. ओके, और क्या पता चलता है, और हमको वेलोसिटी पता चलता है ना. सो वी हैव mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई. आर का वैल्यू क्या निकाला, वो पिछले वाले में निकाल लिया था हमने. क्या था आर का वैल्यू, आर का वैल्यू था कुछ तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई m z स्क्वायर, करेक्ट. ये आर का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था. और क्या है फिर आगे, यहाँ पर है nh बाय 2 पाई है ना. राइट, अभी वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं हम. ठीक है, अब आर का वैल्यू डाल दिया, आर का वैल्यू डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर दिख रहा है वेलोसिटी, करेक्ट ना. ये एम और एम तो कैंसिल हो जाते हैं, बराबर. पाए पाए कैंसिल हो जाएंगे, एन एच बाई 2 पाए हैं, बराबर ना. 2 पाए हैं, 2 तो वैसे रहेगा, ठीक है, 2 वैसे रहेगा. जेड ऊपर चले जाएगा है ना. एक एन एक एन एक एन एक एन ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचता है बेसिकली आपके पास, वी एन रिमेन्स एंड व्हाट यू गेट इज है ना, ये जेड ही ऊपर जाता है, जेड स्क्वायर बाय क्या रहेगा, व्हाट विल रिमेन. 2 तो वैसे रहेगा नीचे है ना, 2 तो है वैसे भी, करेक्ट. ये जेड है बेटा, ठीक है. जेड स्क्वायर बाय क्या आएगा, 2 है, एच है, एन है और एप्सिलॉन नॉट है ना. 2h एप्सिलॉन नॉट n, ठीक है. ये आ गया अपने साथ नीचे, ठीक ना. दिस वी गॉट, दिस कैन फर्दर बी टेन एज व्हाट, vn is equal to what, vn is equal to e squared by 2h epsilon naught है ना, e square by 2h epsilon naught into z1, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं. कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के बाद हमको क्या मिलता है, आफ्टर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वी गेट व्हाट, दिस कांस्टेंट वैल्यू एट 2.18 10 to power 6 into z by n meters per second, right. This is what we get its velocity. ये अपना फाइनल इक्वेशन आ गया इधर, है कि नहीं. ऐसा ना, ठीक है. अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फटाफट फटाफट से करना है, ठीक है.
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच। फर्स्ट ऑर्बिट डायमेंशन जेड क्या है, इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 है ना। तो v1 क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू जेड को 1 एन को 1, कितना आता है 2.18 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। करेक्ट, यह आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड वाले में क्या देखेंगे, v2 इज इक्वल टू 2.18 × 10⁶ है ना। यहाँ पर भी क्या है, n इज इक्वल टू 2 और z कितना आएगा, क्या बोले, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच। यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्बिट पे, सेकेंड ऑर्बिट में z क्या है ना, 2 है। करेक्ट, बराबर ना। अच्छा अच्छा, सेकेंड, सॉरी नॉट, इट्स नॉट सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम क्या है, n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज व्हाट, n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू, आप लोग कर लेना ये सब, ठीक है। इस फॉर्मूला में z का वैल्यू डालना, n का वैल्यू, बच्चों का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। n को 2 डालो, z को 2 डालो, 2/2, n को 2 डालो, z को 3 डालो, 3/2, ऐसा आएगा कुछ। you'll get something like this, ओके। इससे वेलोसिटी भी आ गया है ना। अब बचा क्या क्या अपने पास, नाउ वंस यू हैव गॉट वेलोसिटी, हमारे पास अभी एनर्जी बचा है ना, तो विल नाउ टेक आउट एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी नाउ, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक वी ऑल ऑफ अस नो दैट इज हाफ mv²। वेलोसिटी कितना हमको पता है, 1/2 × m इंटू वेलोसिटी कितना निकला अपना ये, z²/2h एप्सिलॉन नॉट n, डाल दो इसमें, z²/2h एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कितना आएगा ये, करेक्ट। सो it comes about to be how much, is equal to half into, right, mz² e raised to 4 upon 4h² epsilon naught square upon n square। कितना 4 to the 8 है, कितना आ गया 1/8 इंटू कितना आ गया 1/8 mz² e raised to 4, कुछ कट होने वाला है क्या, नहीं, pi² epsilon naught square n square, h² epsilon naught square और n square। इसमें से अभी क्या है, जो कांस्टेंट वाले पार्ट है उसको बाहर निकाल दो। क्या क्या कांस्टेंट है हमने बताया, m e raised to 4 पता है हमको, है ना, 8h² अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये सब पता है, इंटू z² अपॉन n स्क्वायर, ये सब नहीं पता, करेक्ट। तो वंस यू सॉल्व दिस यू गेट व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये सब को पूरा का वैल्यू कितना है 13.6 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। सो फाइनल व्हाट यू गेट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू z² अपॉन n स्क्वायर, करेक्ट। याद रखना ये वैल्यू, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तो निकल गया अपना काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, तो वेलोसिटी निकला, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हमको निकल गया है, करेक्ट ना। वी हैव गॉट काइनेटिक एनर्जी आल्सो नाउ। नाउ रिमेनिंग इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। क्या बचता है अभी, पोटेंशियल एनर्जी बचता है ना, करेक्ट ना। पोटेंशियल एनर्जी हाउ विल यू कैलकुलेट, इतना समझ में आएगा सबको क्या किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा अभी सबको, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी Q1 एंड Q2 है ना।
Q1 एंड Q2 में कुछ पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, करेक्ट? ये फॉर्मूला, सॉरी नॉट आर स्क्वायर बट आर, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हाउ विल आई राइट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है पहला वाला? माइनस ई, और दूसरा वाला क्या है? जेड ई. So potential energy what I get is minus 1/4 pi epsilon naught into Z square by R, करेक्ट? Z square by R, लेकिन R का वैल्यू क्या है बच्चों? वो लिखेंगे अभी हम, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/4 pi epsilon naught Z square by R का वैल्यू कितना था? R का वैल्यू कहाँ निकाला हमने? ये निकालना है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको डाल दो यहाँ पर. पहले निकालना है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय क्या आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर. तो इसको जब सॉल्व करते हैं हमको क्या मिलता है? गेट समथिंग लाइक दिस, माइनस 1/4 इंटू m, z ऊपर चले जाएगा, z का स्क्वायर, m z का स्क्वायर, e भी चल जाएगा, e रेज टू 4 अपॉन क्या है ये? पाई भी आएगा नीचे, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? पाई कहाँ गया? ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा, ये पाई पाई कट हो जाएगा, ठीक है? पाई पाई कट हो जाएगा, क्या बचा अभी अपने पास? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है? इतना आ गया हमको, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिखा, इतना आ गया हमको, ठीक है? अब क्या करेंगे? 1/8 कहीं तो हमने देखा है इसको, है ना? 1/8 देखा है ना कहीं तो, यहाँ पर देखो 1/8 देखा है, और कुछ सेम ही लग रहा है, जेड ई स्क्वायर, अरे ई रेज टू 4 एन स्क्वायर ए स्क्वायर, अरे बाप रे, सब कुछ सेम ही लग रहा है, ऐसा कुछ कुछ है कि नहीं? सब कुछ सेम ही लग रहा है, इसमें हमने ये मिटाना भूल ही गए. करेक्ट? तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/8 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से. तो क्या आ रहा है देखो हमको, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ रहा है मुझे? आई एम गेटिंग माइनस m z स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 टू 8 कर देंगे इंटू 2, 4 टू 8 नीचे कर दिया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर ना. इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, m e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 2, ठीक है? z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू क्या लिख दिया मैंने? इंटू 2 लिख दिया, ठीक है? Now what I am getting potential energy? Now I am getting potential energy to be equal to, अब इसका वैल्यू तो पता है ना, m e रेज टू 4, क्या लिखा? m e रेज टू 4 8 h स्क्वायर अपॉन, करेक्ट? ये इसका वैल्यू पता है 13.6 है, तो लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ पर माइनस साइन तो है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2. पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, करेक्ट? समझ में आया? लिख लो इसको फटाफट.
Understood everyone? Any doubt? Any doubt? Any doubt? समझ में आया कि नहीं सबको? चंपक लाल समझ में आया क्या? ठीक है, तो आगे क्या निकाल सकते हैं आप लोग? टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। सो टोटल एनर्जी वुड बी व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करोगे तो क्या आएगा आपको? विल गेट समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव 13 है और ये -2 है। दोनों को ऐड करोगे तो माइनस साइन तो ज्यादा है ना, ये ट्वाइस है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए क्या रहेगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू इट विल रिमेन। ओके, any doubts anyone has?